آج ہم شہر لاہور میں ایک مرتبہ سے پھر موجود ہیں اور بی بی پاک دامن کے مزار کے سامنے اس وقت ہم موجود ہیں۔ آپ ہماری خصوصی سیریز دیکھ رہے ہیں کہ ہم مزارات کا رخ کر چکے ہیں اور مزارات میں جا کر نہ صرف ہم وہاں آپ کو عاشقین کا ایک مثبت چہرہ دکھاتے ہیں بلکہ ہم ہونے والا شرک بھی بے نقاب کرتے ہیں۔ کیا درگاہ بی بی پاک دامن میں اہل بیت کی قبریں موجود ہیں؟ یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ بہت سے لوگوں کی عقیدت وابستہ ہے وہاں، لہٰذا اس بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کریں۔ کیا عقیدت وابستہ؟ میں کہتا ہوں جی اگر سیدنا حسین علیہ السلام کا روزہ بھی ہو پاکستان کے اندر، دین وٹ آپ نے اس میں سے کرنا کیا ہے؟ تو بی بی پاک دامن کے مزار سے کوئی فرق تو نہیں پڑ جانا، ٹھیک ہے نا؟ باقی یہ تاریخی سوال ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے، نہ اس سے کچھ نکلنا ہے۔ اس وقت ہم بی بی پاک دامن مزار کے احاطے میں حاضر ہو رہے ہیں اور جو بی بی پاک دامن کی حقیقی تاریخ ہے وہ بھی آپ کو بتلائیں گے۔ اہل تحیہ کے نزدیک یہاں مولا علی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ رقیہ علیہ السلام مدفون ہیں اور ان کے ساتھ ہی 5 بیبیاں اور بھی دفن ہیں۔ 9 محرم کی شب یعنی شب عاشور، کچھ بیبیوں کو امام علی مقام نے حکم کیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، زمین پھٹی اور یہ اللہ نے بیبیوں کو زمین میں بلا لیا۔ یہ جو پاک بیبیاں ہیں یہ سید احمد توختہ ترمذی کی بیٹیاں ہیں۔ اب ہم آپ کو تمام قبور کی زیارت کروانے والے ہیں۔ یہ 2 بیبیاں ہیں جو آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور بالکل یہ 3 بیبیاں بقیہ جو ہمارا کیمرہ مین آپ کو اس وقت دکھلا رہا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تاریخ میں ایسا پروگرام آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک بار کیمرہ گھمائے اور دکھلائے پوری دنیا کو، یہاں شیرپور، یہاں شیرپور۔ آپ کے سارے بابوں کا ایمان بھی جمع کریں نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے برابر نہیں ہوتا، وہ بینیفیشری تھے۔ آج گورنمنٹ چندے بند کرے نا تو اس مزار دے ہوتے تو کتے پھرتے ہوئے نظر آن کے صفائی کے لیے بھی کوئی بندہ نہیں ملے گا، تو کتے پھرتے ہوئے نظر آن کے صفائی کے لیے بھی کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے اس وقت مخاطب ہوں کہ کائنڈلی مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہاں ہو رہا ہے شرک بھائی؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کیفیت کیا ہوتی ہے یہاں جب آپ تشریف لے آتی ہیں، حاضر ہو جاتی ہیں؟ میرے میاں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اچھا، ڈیتھ کے بعد میں ادھر ہی آ گئی، اچھا، بچوں کو پالا ہے، 2 بیٹوں کی شادی کی ہے۔ جس دربار پہ آپ نے جانا ہے، ویسے تو حکم درباروں پہ جانے کا نہیں ہے کیونکہ مزارات تو بنانا ہی غلط ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبریں پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور اس پہ بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو شوق ہے ضرور جائیں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے اس شرط کے ساتھ، وہاں بلند آواز سے آپ نے، آج تک تو آپ ان کو پکارتے تھے نا مدد کے لیے، اب آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے اے اللہ جو یہاں بزرگان دین دفن ہے، اے اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ، ان کے بڑے گناہ، ان کے وہ گناہ جو انہوں نے چھپ کے کیے عوام سے، جو لوگوں کے سامنے کیے، ہاں سارے معاف کر دے۔ اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں، اے اللہ ان کی قبر کے اوپر اژدہا مسلط نہ ہو۔ وہ ہستی ہو کبھی جائے گی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گئے والے۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے انتہائی محبت، خلوص، ادب اور تضرع کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آپ ہماری خصوصی سیریز دیکھ رہے ہیں کہ ہم مزارات کا رخ کر چکے ہیں اور مزارات میں جا کر نہ صرف ہم وہاں آپ کو عاشقین کا ایک
मुस्बत चेहरा दिखाते हैं, बल्कि हम होने वाला शिर्क भी कहीं ना कहीं बेनकाब करते हैं, चूँकि हमने आपसे वादा कर रखा है। इससे पहले हम लाहौर दाता की नगरी दाता दरबार में हाजिर हुए और वहाँ भी हमने आपको तमाम ही मामलात से आगाह किया। दाता दरबार में सबसे पहले हमारी सीरीज का आगाज हुआ, हमने इश्क भी दिखलाया और होने वाला शिर्क भी बेनकाब के। नाज़रीन कराम, आज हम शहर लाहौर में एक मरतबा से फिर मौजूद हैं और बीबी पाक दामन, आप अपनी स्क्रीन पर बीबी पाक दामन का मिज़ार मेरे अक़ब में देख सकते हैं। नाज़रीन कराम, ये जो लोगों में एक वहम पाया जाता है कि भाई माज़अल्लाह शिर्क होते हैं, आपको वो भी दिखाएंगे कि लोग शिर्क नहीं कर रहे बल्कि अकीदतों का इजहार कर रहे हैं, अकीदतों के नजराने पेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आने वाला हर शख्स यही आवाज बुलंद करता है और उसके दिल की यही सदा है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल इनाम हूँ। नाज़रीन कराम, मैं आपको बीबी पाक दामन की हकीकी तारीख भी अभी बतलाने वाला हूँ, लेकिन अभी हम मिज़ार के इहाते में हाजिर होंगे और आपको कुबूर अत्थर भी दिखलाएंगे और तमाम मामलात से और मनाजिर से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिए। जाए, मैंने तो कई बार लोगों को कहा जिनको बड़ा शौक है ना कि हम बड़े अच्छे तरीके से दावत कर सकते हैं, मैंने कहा एक हदीस ले जाओ मुस्लिम की 2245 कि मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों पर इमारत बनाने से, कब्रों को पक्का करने से, इस पे मुजावर बन के बैठने से। खर्चा सारा मैं उठाता हूं तुम्हारा, ठीक है। गाल में एक तरफ शहद रख लो, एक तरफ गुड़ रख लो और जाके दाता दरबार लोगों को दावत दो कि मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हाँ मैं अपने नबी की हदीस माशाल्लाह एक पॉजिटिव अंदाज में बयान करने आया हूं, सब्ज़ पगड़ी भी बांध लो। हाँ, हदीस सुनाए, उसके बाद कहीं यहाँ पे सैयद साहब दफन है, आज इनकी रूह के साले सवाब के लिए, इनकी रूह को खुश करने के लिए इनका मज़ार तोड़ने से ही हम सुन्नत का आगाज करते हैं। हाँ, तो लग पता चलेगा, ये बातें करना आसान है। बीबी पाक दामन के मिज़ार के इहाते में इस वक्त हम मौजूद हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, इस मिज़ार के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया, उन्होंने क्या जवाब दिया और क्या फरमाया, क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला सवाल है, क्या दरगाह बीबी पाक दामन में अहले बैत की कब्रें मौजूद हैं? ये सवाल इसलिए किया गया कि बहुत से लोगों की अकीदत वाबस्ता है वहाँ, लिहाजा इस बारे में जो गलत फहमी है उसका इजाला करें। क्या अकीदत वाबस्ता? मैं कहता हूँ जी, अगर सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी हो पाकिस्तान के अंदर, देन व्हाट, आपने उसमें से करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा आप कब्र पे हाज़िरी देंगे, ना झुकेंगे और ना उनको सजदा करेंगे, ना कब्र को चूमेंगे, दुआ करेंगे उनके लिए जो आम मैयत के लिए करते हैं। रहा सलातो सलाम पढ़ना, वो तो हर मैयत के ऊपर आप कहते हैं, सही मुस्लिम में हदीस है, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन। आप वहाँ जाके अस्सलामु अलैका या जो है वो अबा अब्दुल्ला हुसैन इब्न अली, ये कह लें, इसी का फ़र्क पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि इसकी वजह से कोई इधर फ़र्क पड़ जाना है मेरे भाई, तो इन्हीं से पूछें कि अगर इन्हीं चीज़ों की वजह से फ़र्क पड़ना होता, इन मज़ारात की वजह से, इस वक्त दुनिया में काफरों के ज़ेरे असर सबसे बड़ा मुल्क मुसलमानों का है ही इराक है, और सारे मज़ार उधर है, करबला भी उधर है, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। तो बीबी पाक दामन के मज़ार से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ जाना, ठीक है ना। बाकी ये तारीखी सवाल है, हमें नहीं पता कि है या नहीं है, ना इससे कुछ निकलना है। हम नमाज में मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ रहे हैं, वो जहाँ जहाँ दफन है, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, तुम्हारा दरूद व सलाम उन तक पहुँच जाएगा, पहुँच रहा है, दैट्स ऑल। ये नाज़रीन कराम, उनका कि तारीखी मसला है और इस पर हम बहस नहीं करना चाहते। हमें नहीं मालूम कि यहाँ मौला अली की बेटियाँ मौजूद हैं या नहीं हैं। नाज़रीन कराम, लेकिन मैं यानी आपका मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर आज आपको बीबी पाक दामन के मिज़ार की हकीकी तारीख बताने वाला है। यहाँ एक मोहब्बत का और हम इश्क का पैगाम देंगे, चूँकि सुन्नी और शिया कभी तकसीम नहीं हो सकते, जैसे सीन है वैसे ही शीन है, और जो मसले के आइन को अपना ले वो इश्क वाले कहलाते हैं। वो सुन्नी शिया की जंग और दौर से बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं और वो इन मामलात से बिल्कुल नाबलद होते हैं। नाज़रीन कराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का इस हवाले से मौक़िफ़ आपने जान लिया। अब मैं आपको बतलाऊँ कि बीबी पाक दामन की हकीकी तारीख क्या है, चूँकि यहाँ एक पुरमसरत माहौल है और नूरानी माहौल है। अभी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस तरफ से दिखाया जाए कि दरबार शरीफ का बिल्कुल बेहतरीन माहौल है, क्योंकि हमारे साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने बेहतरीन तरीके से इसको सजाया और उनका इश्क भी ज़ाहिर है कि दिखलाई दे रहा है। लेकिन नाज़रीन कराम, अभी मैं आपको तारीख़ी हक़ाइक़ बताने वाला हूँ। अहले तशय्युअ के नज़दीक, ये अहले तशय्युअ की किताबों में ये कहा जाता है कि यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा रुक़ैया अलैहिस्सलाम मदफून हैं।
और उनके साथ ही 5 बीबियां और भी दफन हैं। हम आपको मज़ार का ज़ाहिर की दीदार भी कराएंगे और मज़ारात की ज़ियारत भी करवाएंगे। नाज़रीन किराम, तारीख़ हमको ये बताती है अहले तशय्युअ की कि 9 मुहर्रम की शब यानी शब आशूर, इमाम अली मकाम ने फरमाया कि जो जाना चाहता है वो जा सकता है, वो चला जाए, मैं चिराग गुल कर देता हूँ, चिराग बुझा देता हूँ। ऐसा ही हुआ। अब्बास से कहा गया कि अब्बास चिराग बुझाओ, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने चिराग बुझाए। यह एक लतीफ़ नुक्ता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन ये वाक़या मुकम्मल होने के बाद बतलाऊंगा। मौला अब्बास ने चिराग बुझा दिए और फिर इसलिए बुझाएगा कि भाई अगर कोई उठ के जाना चाहता है, मौला हुसैन को छोड़ के जाना चाहता है, तो ताकि उसको खिफ़त का सामना न करना पड़े, खिफ़त महसूस ना हो, शर्मिंदगी ना हो, और वो काफ़िले हुसैन को छोड़कर चला जाए, काफ़िला 72 जो है वो छोड़कर चला जाए। लेकिन एकदम से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बास चिराग जलाओ। एकदम से चिराग जला दिए गए और मौला हुसैन ने देखा कि एक भी साथी आपको छोड़कर नहीं गया था, एक भी साथी उठकर नहीं गया था। लेकिन यहाँ तारीख बताती है, अहले तशय्युअ खास कुतुब में मिलता है कि कुछ बीबियों को इमाम अली मकाम ने हुक्म किया कि आप यहाँ से चले जाइए। कहा कि हाँ, इमाम को छोड़कर हम कैसे जाएं, नहीं जा सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे मेरे बाबा जान मौला अली अलैहिस्सलाम इब्ने अबी तालिब का हुक्म हुआ है कि इन बीबियों को यहाँ से रवाना कर दिया जाए। गोया उन बीबियों ने सरजमीन करबला को छोड़ा और फिर छोड़ते छोड़ते हिजरत करते करते वो हिंदुस्तान पहुँच गई और फिर हिंदुस्तान से वो लाहौर में मुकीम हो गई, लाहौर में आ बसी। मुकामी बादशाह था, यानी उसको महाराजा कह लीजिए, उसने इन पर जीना तंग कर दिया, इन पाक बीबियों पर जीना तंग कर दिया। अब जब इन पाक बीबियों पर जीना तंग हो गया, आप ज़रा कैमरा में से रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा करीब आए। अब जब इन पाक बीबियों पर नाज़रीन किराम जीना तंग हो गया तो इन पाक बीबियों ने मुख्तसरन ये दुआ की कि ए अल्लाह हमारा पर्दा रख लीजिए। ज़मीन फटी और ये अल्लाह ने बीबियों को ज़मीन में बुला लिया। ये तो है अहले तशय्युअ की तारीख़ जो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन किराम, अहले सुन्नत व जमात इस हवाले से क्या कहते हैं और जो तारीख़ी कुतुब हैं उनके क्या, क्योंकि हम तो इसका पैगाम देंगे भाई, हम तो मोहब्बत को फैलाएंगे। हम मतलब ये कि सीन और शीन की जंग से आज़ाद हो चुके हैं। जो आइन वाले होते हैं वो सीन और शीन की जंग से आज़ाद हो जाते हैं। हम इश्क वाले हैं, सुन्नी शिया से कोई ताल्लुक़ नहीं, इश्क वाले, हकीकी इश्क वाले, और हम इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम देंगे और यही मोहब्बत फैलाते रहेंगे मरते दम तक। नाज़रीन किराम, अहले सुन्नत व जमात की तारीख़ से मैं आपको आगाह करने वाला हूँ। कैमरा में से रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा करीब आए और फिर मज़ारात की भी आपको ज़ियारत करवाने वाला हूँ और आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। अहले सुन्नत में है कि ये जो पाक बीबियाँ हैं ये सैयद अहमद तोख्ता तिरमज़ी की बेटियाँ हैं। सैयद अहमद तोख्ता तिरमज़ी उज़्बेकिस्तान से हिजरत करके लाहौर की जानिब आए और लाहौर की जानिब जब वो आए तो उनकी बेटियां जो थीं वो भी पाक बेटियां थीं। लेकिन सैयद अहमद तोख्ता तिरमज़ी ये हुसैनी सैयद हैं, यानी ये हुसैन की औलाद में से हैं, सादात हैं। तो यहाँ तो एक मोहब्बत का पैगाम ये है कि बेटियां तो अली की हैं ना, बेटियां तो अली ही की हुई। क्योंकि अगर अहले सुन्नत की नज़र से देखा जाए तो सैयद अहमद तोख्ता मौला हुसैन के बेटे सादात हैं, औलाद चलती आ रही है, नस्ल चलती आ रही है। और जब देखा जाए तो मोहब्बत का पैगाम है, इश्क का पैगाम है और इल्म का पैगाम है। चूँकि इल्म वल फजर की तनवीर जहाँ साहब का नाम है, इल्म वल लैल की जुल्फ़ों में बसाई हुई शाम है। काबा कौसैन की मंजिल को यही सर करता है, एक लम्हे में ये सदियों का सफ़र करता है। इल्म तालिब को तलब से भी सिवा देता है और जहल इंसान को वो जहल बना देता है। सर बिस्तर हो तो यह हक़ वली होता है, करबो बला हो या करबला हो तो जो हुसैन इब्ने अली होता है। नाज़रीन किराम, ये है इल्म। और सैयद अहमद तोख्ता तिरमज़ी रहमहुल्लाह अपनी 5 बेटियों को लेकर उज़्बेकिस्तान से लाहौर में तशरीफ़ फरमा हो चुके और फिर यहाँ के राजा ने, यानी वहाँ से बिल्कुल सेम स्टोरी, यहाँ के राजा ने इन पर जीना तंग कर दिया। राजा का बेटा अब्दुल्ला नाम बतलाया जाता है जो कि इन पर घेरा तंग कर रहा था, मगर उसके दिल में कहीं ना कहीं इश्क की रमक बाकी थी। और वही इश्क की रमक जब मजीद जागी, मजीद फूटी, तो वो जिसका नाम अब्दुल्ला था आज उसका मिजाज भी इसी इहाते में मौजूद है, चूँकि वो भी इनका गुलाम हो चुका था और जिनका नाम खाकी से मशहूर हो गया।
اب ہم آپ کو تمام قبور کی زیارت کروانے والے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تاریخ میں ایسا پروگرام آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مزار ہے جو منسوب ہے بی بی پاک رقیہ علیہ السلام. مزار آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. بی بی پاک رقیہ علیہ السلام سے یہ مزار منسوب ہے. اور اہل تشیع کی جو تاریخ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ شب عاشور یہ جب بیبیاں آئیں کربلا کی زمین کو چھوڑ کر اور پھر ہندوستان کی جانب ہجرت کی اور پھر وہ لاہور میں مقیم ہو گئی, لاہور میں منتقل ہو گئی. ناظرین کرام, ان کے ساتھ ان کی پاک بیٹیاں بھی ہیں, بی بی نور, بی بی تاج, بی بی حور, بی بی گوہر, بی بی شہناز. یہ پاک بیبیوں کا نام ہے. آپ اپنی اسکرینز پر ان کے بھی مزارات دیکھ رہے ہیں. یہ 2 بیبیاں ہیں آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں, اور بالکل یہ 3 بیبیاں بقیہ جو ہمارا کیمرہ مین آپ کو اس وقت دکھا رہا ہے, اور میں بھی آپ کو باقاعدہ یہاں کنایوں کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ 2 بیبیاں اور 3 بیبیاں, کل ملا کر 5 بیبیاں, یعنی بی بی نور, بی بی تاج, بی بی حور, بی بی گوہر اور بی بی شہناز اور بی بی پاک رقیہ علیہ السلام. اس وقت میں آپ کو تاریخی حقائق بتا چکا ہوں. مزارات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور بہترین کاوش کی ہے ہمارے سید محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سابقہ رہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مزار سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں, مہک اٹھ رہی ہے, اور عاشقین کا ہجوم ہے. عاشقین جوق در جوق حاضری بھر رہے ہیں اور مشرف فیضیاب ہو رہے ہیں. ناظرین کرام, انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو مزاروں کے خلاف رہتے ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ہمیشہ محبت کا پیغام بھی دیا, محبت کا درس بھی دیا. لیکن انجینئر صاحب کے لیے ایک پیغام ہے کہ کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا ایک بار کیمرہ گھمائے اور دکھائے پوری دنیا کو کہ کہاں شرک ہو رہا ہے, کہاں ہے وہ شرک جو ہو رہا ہے, کہاں ہے شرک. بھائی یہاں شرک ہو رہا ہے, یہاں شرک ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ چھوڑ دیں گے اگر میں کوئی غلط بات کروں گا قرآن و سنت کے خلاف؟ آپ کے سارے بابوں کا ایمان بھی جمع کریں نا, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے برابر نہیں ہوتا. وہ بینیفیشری تھے جی, بابا پال رہا ہے جی, لورش بہ کے اتنے لوگوں کو کھوا رہا ہے. وہ بابا نہیں پال رہا, وہ تھوڑے چندے پال رہے ہیں. آج گورنمنٹ چندے بند کرے نا تو اس مزار دے ہوتے تمہیں کتے پھرتے ہوئے نظر آن گے, صفائی کے لیے بھی کوئی بندہ نہیں ملے گا. چندوں کے اوپر پلتے ہو تم لوگ, چندوں سے خود کھاتے ہو اور تھوڑا سا عوام پہ لگا کے یہ کہتے ہو کہ بابا پال رہا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. کدھر تھے یہ بابے جب ٹھوک کے جاتے تھے دہشت گرد ان کے مزاروں کے اوپر؟ اور جو سب سے بڑے بابے دفن ہے نا بغداد کے اندر اور عراق کے اندر, ادھر تو امریکن بمباری میں کتنے مزار گر چکے ہیں. وہ بات کرنے والی کرے یار, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سے ڈر جائے. لہٰذا یہ جو اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں نا, ان پرنسپل دیکھا کریں قرآن و سنت کے دلائل. چونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی بابے دش ہے ہی کوئی. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر بابے کچھ ہے نہیں ہے, یہ لوگ کون ہے بھائی جو مزارات پہ آتے ہیں؟ کون ہے یہ لوگ جو عشق کرتے ہیں, جو محبت کرتے ہیں, جو پیار کرتے ہیں, اور ان کا پیار, ان کا فیض ہمیشہ قیامت تک بڑھتا رہے گا, یہ ختم نہیں ہوگا. فیض ختم نہیں ہوتا, زندگی ختم ہو جاتی ہے, فیض ختم نہیں ہوتا. جب ایک عام ماں مرتی ہے, عام ماں جب مر جاتی ہے, کیونکہ مائیں تو مرتی نہیں ہیں, یہ تو قلندر مزاج ہوتی ہیں, پردہ کر جاتی ہیں. مائیں نہیں مرتی, یہ پردہ کرتی ہیں, قلندرانہ مزاج رکھتی ہیں. اور یہ تو بزرگ ہیں بھائی, یہ بڑے بزرگ ہیں, اور یہ تو جن کی آل اولاد میں سے ہیں ان کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. یہ تو ان کی اولاد میں سے ہیں. کا فیض کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ کوئی شرک نہیں ہو رہا, یہاں محبت بانٹی جا رہی ہے, پیار بانٹا ہے. لوگ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں, لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, لوگ محبتیں بانٹ رہے ہیں, محبتیں دکھا رہے ہیں, محبتیں تقسیم ہو رہی ہیں رمضان کے اس بابرکت مہینے میں. ناظرین اکرام, ابھی ہمارے ساتھ کچھ منقبت خواہ حضرات بھی موجود ہوں گے اور ان سے منقبت بھی سنیں گے اور آپ بھی محظوظ ہوں گے. لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے اس وقت مخاطب ہوں کہ کائنڈلی مجھے آپ یہ بتا دیجئے, یعنی اپنے بھائی ڈاکٹر احمد نذیر کو بتا دیجئے کہ بھائی یہاں کیمرہ مین کیمرہ گھمائے اور دکھائے, کہاں ہو رہا ہے شرک بھائی؟ بھائی کہاں ہو رہا ہے بھائی؟ محبتیں بانٹی جا رہی ہیں, آپ سن رہے آوازیں, منقبت خواہ بیٹھے ہوئے ہیں, محبت سے پڑھ رہے ہیں, قصیدے گا رہے ہیں, مولا علی کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں, اور مہک اٹھ رہی ہے یہاں پر, عشق کی مہک, علم کی مہک, مودت کی مہک, محبت کی مہک, اور مولا علی علیہ السلام کا جو کرم ہے اس کی مہک. جنازے کرام ثانیہ بطول
मनकबत ख़्वाह हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? जी करम। बीबी पाक दामन के मज़ार पे मौजूद हैं। जी। सबसे पहले तो ये बताइए, आप तो आती रहती हैं, जी जी बिल्कुल। क्या कैफियत होती हैं यहाँ आकर? यहाँ की कैफियत कुछ इस तरह की होती है कि मीन्स मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि जब हम जिक्र करते हैं, मीन्स कलाम वगैरह पढ़ते हैं, तो ऐसा सीन होता है कि घर से हम बहुत सी दुआएं लेकर आते हैं कि पाक बीबी के दर पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ दुआएं मांगेंगे, लेकिन जब आकाज़ादी के दर पर आते हैं तो हम ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल जाते हैं, मीन्स सब दुआएं भूल जाते हैं यानी इनका दर्द देख जो के। दुआएं की जाती हैं, हाँ सब जी। कुछ मिलता है, ऐसा दुआएं कबूल होती बिल्कुल, हैं। इसमें कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने जो इज्जत मालिक की ज़ात ने दी है वो पाक बीबी की जूतियों का सदका है, इनके बच्चों का सदका है, सब इन्हीं का दिया हुआ। क्या सुनाएंगे आज आप? मैं कलाम सुनाऊंगी बहुत खूबसूरत सा। बिस्मिल्लाह की, बिस्मिल्लाह की। बैठ कर सुन। जी जी जी। जी नाज़रीन कराम, सानिया बुतूल हमारे साथ मौजूद हैं। बीबी पाक दामन का अब मिज़ार है और इसी मिज़ार के इहाते में इस वक्त हम बैठ चुके हैं और सानिया बुतूल अपनी खूबसूरत आवाज़ से आपको भी और यहाँ हाज़िन को भी महसूस करेंगे। सानिया बिस्मिल्लाह कीजिए। करम की विरासत है, अता उनकी विरासत है, अली के हैं ये गए वाले, हया इनकी विरासत है। वो हस्ती हो कटी जाएगी, वो ज़हरा हो के ज़ैनब हो, गवा कुदसी है ऐ लोगो, हया इनकी विरासत है, अली के हैं ये गए वाले, वफा इनकी विरासत है, और वफा से बदला भी नहीं लेते, कलम इनकी विरासत है, सखा इनकी विरासत है, अली के हैं ये गए वाले, वफा इनकी विरासत है। सुभान अल्लाह, सलाम तो, सलाम तो। जी so much. और भी कुछ सुनाएंगे आप? जी बिल्कुल। हाँ, बिस्मिल्लाह। वो एक और कलम मुस्तफा वाले, मुर्तज़ा वाले, मुस्तफा वाले, मुर्तज़ा वाले, मेरे वारिस ने करबला वाले, मेरे वारिस ने करबला वाले, मेरे वारिस ने करबला वाले, और पाक ज़हरा दासद का मदनिया, पाक बीबी दा सदका मदनिया, हथ में चुका जदों दुआ वाले, हथ में चुका जदों दुआ वाले, मेरे वारिस ने करबला वाले, और जगते कोई नहीं पंजाबर गा, जगते कोई नहीं पंजाबर गा, एगो सैयद ने बस अता वाले, एगो सैयद ने बस अता वाले, मेरे वारिस ने करबला वाले,
सैयदा दा हया कैद ने सैयदा दा कैद ने जेड़े भी लोग ने हया वाले जेड़े भी लोग ने हया वाले मेरे वारिस ने करबला वाले मेरे वारिस ने करबला वाले। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सलाम की। जी हैं, कमाल पढ़ा आप, कमाल पढ़ा। और आपने ज़ाहिर है कि एक समा बांध दिया यहाँ पर। नाज़रीन कराम, सानिया बुतूल हमारे साथ मौजूद थी। अब मज़ीद जो यहाँ नुहा खां मौजूद हैं, यहाँ जो मनपत खां मौजूद हैं, इस मज़ार के हादसे में उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आपको मज़ीद उनकी आवाज़ों से महसूस करते हैं हमारे साथ। जिस दरबार पे आपने जाना है, वैसे तो हुक्म दरबारों पे जाने का नहीं है, कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद आए। सही मुस्लिम की हदीस है। मज़ारात पे जाने नहीं, क्योंकि मज़ारात तो बनाना ही गलत है। सही मुस्लिम की हदीस है, मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रें पक्का करने से, कब्रों पर इमारत बनाने से और इस पे बैठने से। डायरेक्ट बैठना भी मना है और मुजावर बन के बैठना भी मना है। फिर भी अगर आपको शौक है जरूर जाएं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है इस शर्त के साथ, वहां बुलंद आवाज से आपने, आज तक तो आप उनको पुकारते थे ना मदद के लिए, अब आपने बुलंद आवाज से कहना है, ऐ अल्लाह जो यहां बुजुर्गान दीन दफन है, ऐ अल्लाह इनके सारे गुनाह माफ फरमा, ऐ अल्लाह इनके छोटे गुनाह, इनके बड़े गुनाह, इनके वो गुनाह जो इन्होंने छुप के किए अवाम से, जो लोगों के सामने किए, हाँ सारे माफ कर दे। ऐ अल्लाह इनकी कब्र में कीड़े ना पड़े, ऐ अल्लाह इनकी कब्र के ऊपर अजदहा मुसल्लत ना हो। हाँ, तो ये क्या गलत दुआएं हैं? ये वो सारी बातें जो रसूलुल्लाह ने हमें फरमाई। क्या नाम है आपका? मेरा अशल अब्बास। अशल भाई, मुझे बताइए, बीबी पाक दामन मज़ार में मौजूद है, क्या कैफियत होती हैं जब यहाँ हाजिर होते हैं? बहुत अच्छा मतलब माहौल होता है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। ये दोबारा तब्दील करवाया माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। कुछ सुनाएंगे हमारे नाज़रीन को? जो आप कहेंगे सुना देंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए, जो आपका पसंदीदा हो। नुहा सुना दे सर। बिस्मिल्लाह कीजिए। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, दूर जख्मों से बदन मेरा है सारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। नाज़रीन करम, लोग अपने अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, अपने इश्क का इजहार कर रहे हैं, और जो अहलुल बैत पर ज़ुल्म व सितम ढाए गए लोग अपने लोहों में उनका भी जिक्र कर रहे हैं। मैं कहता हूं जी, अगर सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी हो पाकिस्तान के अंदर, देन व्हाट, आपने उसमें से करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा आप कब्र पे हाज़िरी देंगे, ना झुकेंगे और ना उनको सजदा करेंगे, ना कब्र को चूमेंगे, दुआ करेंगे उनके लिए जो आम मैयत के लिए करते हैं। रहा सलातो सलाम पढ़ना, वो तो हर मैयत के ऊपर आप कहते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन। आप वहाँ जाके अस्सलामु अलैका या जो है वो अबा अब्दुल्ला हुसैन इब्न अली, ये कह लें, किसी का फ़र्क पड़ता है? अगर आप कहते हैं कि इसकी वजह से कोई इधर फ़र्क पड़ जाना है मेरे भाई, तो इन्हीं से पूछें कि अगर इन्हीं चीज़ों की वजह से फ़र्क पड़ना होता, इन मज़ारात की वजह से, इस वक्त दुनिया में काफरों के ज़ेर असर सबसे बड़ा मुल्क मुसलमानों का है ही इराक है, और सारे मज़ार उधर हैं, करबला भी उधर है, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। तो बीबी पाक दामन के मज़ार से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ जाना, ठीक है ना। बाकी ये तारीखी सवाल है, हमें नहीं पता कि है या नहीं है, ना इससे कुछ निकलना है। हम नमाज में
محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں, وہ جہاں جہاں دفن ہے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, تمہارا درود و سلام ان تک پہنچ جائے گا, پہنچ رہا ہے, دیٹس آل. ناظرین کرام, بی بی پاک دامن کے مزار پہ موجود ہیں, لوگ حاضری بھر رہے ہیں اور مشرف فیضیاب ہو رہے ہیں. منقبت خان ریحانہ کوثر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کیفیت کیا ہوتی ہے یہاں جب آپ تشریف لے آتی ہیں, حاضر ہو جاتی ہیں؟ بس بہت خوشی ہوتی ہے مجھے ادھر آنے کی, تو بس میرا دل تو جان سے پڑتی ہے. کتنی دیر سے پڑھ رہی ہیں؟ تقریباً مجھے 15 سال. یہیں پہ پڑھ رہی ہیں, حاضری بھرتی رہتی ہاں ہیں؟ جی, کچھ ملا یہاں سے پڑھتی ہیں؟ بہت کچھ ملا. میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی, میری 3 بیٹیاں 2 بیٹے, میں نے ادھر ہی پالا. اچھا, نہیں میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ملنا نہیں ہے, یہ تو اللہ نے لے لیا نا. ہاں جی, تو وہ بات یہ ہے کہ میں نے ادھر ہی بس, اچھا. ڈیتھ کے بعد میں ادھر ہی آ گئی. اچھا بچوں کو پالا ہے, 2 بیٹوں کی شادی کی ہے. اچھا, ماشاء اللہ. تو یہ میرا چھوٹا بیٹا میرے پاس ہی ادھر یہ سامنے ٹھیک ہے, کیا سنائیں گے, کیا سنائیں گے جو یہ آپ جو آپ کا سب سے مقبول ہوا ہے نا, وہ ہم کو سنا دیجیے, ذرا ماحول بن جائے ذرا ایک. ٹھیک ہو. ہاں. نارے 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 دیا علی دیا نجم دے پاس وہ کر کے لانیا ریا نارے نارے دھاماریا 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 ہائے دریا کی جگہ کیلی سی میرا لنگیا آئے میرا لنگیا آگادی دینا چنو شامل علی باقی دی گزری دس دیا رہیا نارے دھاماریا. بیان پڑھ دیتے بھی پڑھ دے. میرے وے میں اج دی مہمان میرے وے میں اج دی مہمان میں جانا میں میرے وے میں اج دی مہمان میرے وے میں اج دی مہمان جل جل نظر پتر بچانے پتر بچانے باکر سجاد دوے کنڈے اتے چانے کنڈے اتے چانے میرے وے مک گئے میرے در حقیقت بی بی زینب میرے وے مک گئے میرے میں جانا میرے وے میں اج دی
सलाम 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 वाला सलामत रखें। मन की मुराद पाएँ आप। नाज़रीन कराम, इश्क है, माहौल है, मुवद्दत है, मोहब्बत है। मुवद्दत का मैं यहाँ आपको बतलाना चाहता हूँ, इजाज़त चाहूँगा। मुवद्दत क्या होती है नाज़रीन कराम? मुवद्दत दर हकीकत मवाली ही कर सकती है, मौला अली के मलंग ही कर सकती है। मछली देखिए कभी, मछली आप लोगों ने, मछली को पानी से मुवद्दत है। इंतहाई बारीक नुक्ता बताने वाला हूँ, इंतहाई लतीफ, दकीक और लजीज, कि मछली को पानी से मोहब्बत हुआ करती है। जो ही पानी से बाहर निकलती है तड़पने लगती है, तड़प तड़प के मर जाती है। और फिर जब वो तड़प तड़प के मर जाती है तो अवामुन्नास में से उसको पका कर खा लिए जाते या बनाकर खा लिए जाते, फ्राई किया जाता है ना भाई, खा लिए जाते। और जब उस मछली को हम निगल लेते हैं, उस मछली को जब हम निगल लेते हैं, मछली जब हम खा लेते हैं तो हमको फिर पानी की तलब होती है। वो हमें नहीं हो रही, मछली मांग रही है पानी। वो पानी दर हकीकत मछली मांग रही है, क्योंकि उसको पानी से मुवद्दत है। इसी तरह ऐन इसी तरह मौला अली के मानने वाले को मौला अली के बच्चों से मुवद्दत है, मौला अली से मुवद्दत है, खानवादा रिसालत से मुवद्दत है, खानवादा नबूवत से मुवद्दत है। इश्क है, माहौल है, और इस माहौल को हमने कैद करने की अपने कैमरे में कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इश्क नजर आया होगा, शिर्क नहीं। प्रोग्राम पेश करते वक्त कोई गलती हो गई हो तो रब के हुजूर तौबा के तलबगार और माफ़ी के खास्तगार हैं। सांसों में रवानी और जिस्म में जवानी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स महसूस हो सके। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।